ایک بے وفائی کی اپنی ایک تاریخ ہے، لیکن دونوں کی آبائی سیٹیں ہیں ٹکٹوں کے اتنے محتاج نہیں کہ عفیفہ ممدوٹ آنٹی تھیں سردار فاروق خان لغاری تھی۔ سردار فاروق خان لغاری اور جعفر لغاری آپس میں رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، کزن شپ ہے۔ اویس لغاری کی کزن شپ ہے محسن لغاری سے۔ تو اختر گرچانی کو اتنے کم ووٹ کیوں ملے؟ شازیہ عابد کے ووٹ تو پھر بھی 25,000 تھے۔ دوستو، آج بات کرنی ہے راجن پور کے الیکشن کی۔ جب راجن پور کی بات کریں تو آپ راجن پور اور ڈی جی خان دو اضلاع کو علیحدہ نہیں کر سکتے۔ راجن پور اور ڈی جی خان جہاں پر غالب اکثریت یا سیاسی، آپ سمجھیں سیاسی طور پہ لغاری خاندان غالب ہے، اب وہاں پہ جب لغاری الیکشن جیتے کم و بیش یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کوئی پارٹی نہیں جیتتی، وہ الیکشن جیتا ہوتا ہے اس ٹرائب نے۔ میں چونکہ آج لغاری خاندان کی اور لغاریوں کی بات کر رہا ہوں، بہرحال قابل تحسین ہے محسن لغاری کا جیتنا اور مبارکباد ہے محسن لغاری NA 193 میں جو وہ ضمنی الیکشن جیتے۔ لیکن مجھے دو باتیں یاد آئی ہیں جو لغاری خاندان سے ریلیٹڈ ہے۔ اب پہلی بات مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 88 کے الیکشن میں جو اس الیکشن میں ہوا وہ 88 کے الیکشن میں بھی ہوا، یعنی 88 کے الیکشن میں جناب فاروق لغاری کا مقابلہ بیگم عفیفہ ممدوٹ سے تھا۔ تو بیگم عفیفہ ممدوٹ اسلامی جمہوری اتحاد کے ٹکٹ پہ تھی اور جناب سردار فاروق خان لغاری پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ تھے۔ پھر کیا ہوا کہ ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ بیگم عفیفہ ممدوٹ بھی پنجاب کی جو اسمبلی ہے اس کا حصہ بہرحال رہی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جناب لغاری، سردار فاروق لغاری کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے اوپر والی سیٹ چھوڑی اور وزیر اعلیٰ کے لیے میدان میں آئے۔ وزارت اعلیٰ کا الیکشن وہ جناب میاں نواز شریف سے ہار گئے، حالانکہ 5-7 ووٹوں کا فرق تھا، لیکن اس وقت کی نون لیگ اہم پارٹی تھی، وہ ووٹ اپنی طرف آزاد لے جاتی تھی۔ اب یہ پھر میدان میں گئے، پھر عفیفہ ممدوٹ مقابلے پہ آئی اور پھر لغاری صاحب الیکشن جیتے اور جناب فاروق لغاری اوپر جا کے غالباً وہ اچھی طرح یاد نہیں ہے لیکن بجلی پانی کے وزیر بنے یا خرسہ بجلی پانی کے وزیر، بہرحال وفاقی وزیر بن گئے۔ تو یہ جو بار بار ریپیٹیشن ہوتی رہی تو اس وقت یہ جو حلقے تھے، سیاسی حلقے تھے راجن پور اور ڈی جی خان کے، بہت زیر بحث رہے اور ہمیں 85 اور 88 میں پتا چلا ان حلقوں کا۔ ایک بات دوسری، اس بات ایک اور ڈی جی خان راجن پور سے اور بالخصوص ڈی جی خان سے تاریخ کا حصہ ہے کہ یہاں پر جتنے بڑے کھوسا اور لغاری خاندان ہیں اتنے بڑے بے وفا بھی ہیں۔ سردار فاروق خان لغاری کو بے نظیر بھٹو نے صدر پاکستان بنایا اور انہوں نے ان کی اسمبلی توڑ دی، حکومت ختم کر دی۔ ان کا اٹکھڑکا تھا میاں نواز شریف سے، لیکن آج فاروق خان لغاری کا بیٹا اویس لغاری نون لیگ کا ماضی میں وزیر تھا اور اس وقت صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے۔ آگے چلتے ہیں، کھوسا خاندان وہ بڑا قریب تھا، ہمیشہ سے ہم 85 سے دیکھ رہے تھے 2018 تک وہ خاندان رہا میاں نواز شریف کے ساتھ۔ میاں نواز شریف نے دوست محمد کھوسے کو، یعنی شہباز شریف جب تک کلیئر نہیں ہوئے تھے عدالت سے، بعد میں وہ الگ بات ہے کہ عدالت میں وہ سٹے پہ وزارت اعلیٰ مکمل کر گئے، تو جب تک تھوڑی سی عدالتی معاملات تھے تو دوست محمد کھوسا کو وزارت اعلیٰ کا مزہ دیا نون لیگ نے، شہباز شریف نے۔ پھر مسلم لیگ نواز نے
जनाब सरदार जुल्फकार खोसा को गवर्नर भी बनाया। आज देखें सरदार जुल्फकार खोसा पीटीआई में है। आज देखें यानी वो मुस्लिम लीग नवाज को छोड़ के पीटीआई में है सरदार जुल्फकार खोसा, और जनाब जो टब्बर है सरदार फरूख खान लगारी का वो PMLN में है। एक बेवफाई की अपनी एक तारीख है, लेकिन दोनों की आबाई सीटें हैं, टिकटों के इतने मोहताज नहीं। अब बात करते हैं मोहसिन लगारी। एक बात इससे पहले मेरे ज़हन में आ गई कि अफीफा ममदोट आंटी थी सरदार फरूख खान लगारी थी। सरदार फरूख खान लगारी और जाफर लगारी आपस में रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, कजनशिप है। अवैस लगारी की कजनशिप है मोहसिन लगारी से। तो होता क्या है, बड़ी शानदार रवायत है। और मैं ये जो मोहसिन लगारी साहब की बात कर रहा हूं, जिनकी सीट पे ये जीते हैं, सरदार जाफर खान लगारी, जाफर साहब को देख के तज्जिये करने मैंने सीखे हैं। जाफर खान लगारी के आप 88 का इलेक्शन देखें, आपको पीपल्स पार्टी के साथ मिलेगा। उसके बाद का देखें, जब मुस्लिम लीग नवाज ने जीतना है तो 93 में आपको वो मुस्लिम लीग नवाज के साथ खड़े आएंगे। आगे आप देखेंगे मुस्लिम लीग नवाज के साथ खड़े होंगे 1999 तक। 2002 में आप जाफर खान लगारी को देखेंगे तो वो 2002 के इलेक्शन में क्यू लीग के साथ खड़े थे, क्योंकि क्यू लीग की हुकूमत आई। जिसकी हुकूमत आनी है जाफर खान लगारी उनके साथ खड़े हैं। 6 दफा वो MNA रहे हैं, 2 दफा जाफर खान लगारी MP रहे हैं, जिनकी सीट पे मोहसिन लगारी ने ये जो अभी हल्का 193 का जिमनी इलेक्शन PTI के टिकट पे जीता है। आगे चलते हैं, 2002 में और 2008 में क्यू लीग के साथ रहे। 2013 का इलेक्शन जीतना था और हुकूमत बननी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, तो 2013 में जाफर खान लगारी मुस्लिम लीग नवाज के साथ थे। अब आ जाता है 2018, वो जाफर खान लगारी मरहूम जिनकी जिमनी इलेक्शन मोहसिन खान लगारी ने जीता। अब देखें 2018 में साफ पता था एस्टेब्लिशमेंट ने किधर जाना है, तो वो PTI के साथ खड़े हो गए। तो लोग मैं तो टीवी पे भी कई तबसरे और अपने नवाए वक्त कालमों से जंग कालमों तक देखता था जाफर खान लगारी किस टिकट पे हैं, उन्हीं की हुकूमत आती थी। तो ये वो हल्का है जिस पे PTI बगलें बजा रही है। मैं नहीं समझता कि इसमें PTI की फतह है। ये जाफर खान लगारी की सीट थी, PTI के टिकट पे जीते हुए थे, और ये जाफर खान लगारी की मोहसिन लगारी ने सीट जीत ली। तो फिर मुझे तकलीफ क्या, व्लॉग मैंने क्यों किया? क्या मुझे ये तकलीफ है यहाँ पे PTI जीत गई है और मैं उनकी जीत जो है उसे कड़वा करूं या किरकिरा करूं, या मैं कहूं नहीं बड़ी वाज़ेह बरतरी है। अगर पीपल्स पार्टी और इसके मुस्लिम लीग नवाज के ये अवैस लगारी के तो अब सूबे के हैं, और अवैस लगारी गालबन वो गुल से हारे थे, खातून से। वो एक नया ये बड़ा रवायती अजला है दोनों, राजनपुर और ठीक है, हमें बलखशेर मजारी याद आते हैं, खोसा खानदान याद आता है, गुरचानी खानदान याद आता है, लेकिन याद रखिए कि यहाँ पर खवातीन को भी नुमाइंदगी मिली और इज्जत मिली जेंडर बाइस से हट के, लेकिन वो खवातीन वडेरों ही की थी। आगे चलते हैं, आगे चल के यह है कि मोहसिन खान लगारी क्यों जीते। 90,000 के करीब वोट लिए, मोर देन 82-83,000 तो जाफर लगारी के भी थे। वोट कम किसने लिए? पिछली दफा इस सीट पे मुस्लिम लीग नवाज का कोई बंदा नहीं था, शेर खान गुरचानी आजाद खड़े हुए थे और 55,000 के करीब उन्होंने वोट लिए थे, शेर खान गुरचानी ने। माफ कीजिएगा, इस दफा यहां पर अख्तर गुरचानी खड़े हुए हैं जनाब पीपल्स पार्टी के टिकट पे। पिछले 2018 में बुरी तरह हारी पीपल्स पार्टी, लेकिन पीपल्स पार्टी की शाजिया आबद ने कोई 25,000 के करीब वोट लिए, जो अब 20,000 वोट हैं, सिर्फ 20,000 वोट हैं। तो आखिर
गुरचानी, अख्तर गुरचानी को इतने कम वोट क्यों मिले? शाजिया आबद के वोट तो फिर भी 25,000 थे और ये बड़ा नाम था। पिछली दफा गुरचानी खानदान के आजाद खड़े हुए थे, शेर खान गुरचानी, तो उन्होंने 55,000 वोट लिए। अब शेर खान गुरचानी को टिकट नहीं मिला था, टिकट अमार लगारी को मिला था। यानी लगारी लगारी मुकाबले में थे, लगारी लगारी मुकाबले में थे और लगारी जनाब अब अमार लगारी को चले 50,000 50 उनकी बन गई। ये 50,000 प्लस वो 20,000 डालें तो फिर भी 90,000 वोट नहीं होता। चले मुस्लिम लीग नून ने तो यहां पर पिछली दफा इन्होंने कैंडिडेट ही खड़ा नहीं किया था, या कोई होना नहीं चाह रहा था, या ये कर ही नहीं पाए थे। इस दफा कैंडिडेट खड़ा किया जिसने 50,000 वोट लिए, जो हल्का इन्होंने खाली छोड़ा था। पीपल्स पार्टी जिसकी अब धूम है, वजारत खारजा में भी कमाल है और ये भी कमाल है कि ये जो जितनी चीजें चल रही हैं पीडीएम की, इनके पीछे ब्रेन आसिफ अली जरदारी का है। पंजाब में पीपल्स पार्टी कहां है? लग तो ये रहा था, ठीक है मुल्तान वाली सीट जीती नून लीग के साथ मिलके। आप जरा गौर कीजिएगा, मुल्तान में जीत क्यों हुई साहबजादा यूसुफ रजा गिलानी की? क्योंकि बेशुमार वोट अब्दुल गफार डोगर के थे। मुस्लिम लीग नवाज के अब्दुल गफार डोगर बैठ गए, उन्हें ऊपर मशीर बना लिया गया मरकज में, और वहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिलकर इलेक्शन लड़ा, जो फिर जनाब कुरैशी साहब की, शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी से इलेक्शन जीत लिया गया। मूसा गिलानी ने जीता। अगर यहां पर वो जो अख्तर गुरचानी है और अमार लगारी हैं, अगर वो पीडीएम की तैयारी है, अगर ये समझते हैं, पहली दो बातें गलत हुई कि पीडीएम की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये इलेक्शन हराया जा सकता था मोहसिन लगारी को। ये वो हल्का मोहसिन लगारी का जो कभी नहीं हारे, जो मैंने पूरी तफसील आपको पस मंजर बताया रिजल्ट के पेश मंजर के तनाजुर में, कि यहाँ पे जाफर लगारी, उनकी बेगम मीना लगारी भी एमपीए रही हैं, वो भी पार्लियामेंट का किसी न किसी तरह हिस्सा रही हैं। देखिए जी, ममदोट खानदान, खोसा खानदान और लगारी खानदान में रिश्तेदारी है। यहाँ कजनशिप का कजनशिप से मुकाबला है, यहाँ शरीके का शरीके से मुकाबला है। तो जो सीट पहले ही जाफर लगारी की थी, उस पे से मोहसिन लगारी का जीतना कोई कमाल नहीं है। लेकिन बेवकूफ़ी, जाहलियत, कम अकली या फिर मजबूरी समझें कि पीडीएम इकट्ठा इलेक्शन लड़ती तो जीत सकती थी। तो कहां है सदरन पंजाब में जो पीपल्स पार्टी का ग्राफ ऊपर जा रहा था? जनाब 5,000 वोट तो यहां नीचे गया, और दिस इज द रीजन के मैंने ये व्लॉग किया। सियासत की एक साइंस है, मुझे इससे कोई, वो जो लोग कहते हैं ना कि देखे पीटीआई वाले लोग बगैर देखे सोचे समझे वोट देते हैं इमरान खान के नाम पे, नॉट एट ऑल। वोट हमेशा इलेक्टेबल को मिलता है। मोहसिन लगारी इलेक्टेबल इटसेल्फ, हिमसेल्फ इलेक्टेबल थे, और जाफर लगारी तो बहुत बड़े इलेक्टेबल थे, जिन्हें देख के मेरे जैसे देखते थे कि हवा का रुख किस तरफ है। तो ये मोहसिन लगारी ने जाफर लगारी की, लगारियों ने सीट जीती, लगारियों को शिकस्त दे करके। यहां कोई पीटीआई नहीं जीते। हाँ, अगर तीसमार खान पीडीएम समझती थी तो फिर पीडीएम को इलेक्शन जरा मिलकर लड़ना चाहिए था। अगर शाजिया आबद 25 ले सकती थी तो पिछली दफा 82,000 वोट था, इस दफा 90 गया, तो इसका मतलब है गुरचानी का जो टिकट है वो नहीं था। एक गुरचानी पीपल्स पार्टी की जानब से आया, माजी में वहां पे गुरचानी आजाद था। ये सारी बात मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि वो साइंटिस्ट जो सियासतदान को समझना चाहते हैं, या जो सियासी हलकों पे या पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है या तजिए के स्टूडेंट हैं, वो ज़रा पूरी बारीक बीनी से और पूरी अर्करेजी से तजियों की तरफ आए। खाली पॉपुलर बात कर देने में कि बल्ले बल्ले सब कुछ ले गया इमरान खान, ये तजिया नहीं होता। तजिया वो होता है जो टेलीस्कोपिकली, माइक्रोस्कोपिकली, एनाटोमिकली और फिजियोलॉजिकली सामने आए, जिसमें आपकी समाजियात भी हो, आपकी सियासियात भी हो, और आप हिस्ट्री को भी मद्देनजर रखें। तो जनाब पीपल्स पार्टी नीचे गई है राजनपुर में, फिर एक दफा कब उभरेगी सवाल है, और सवाल छोड़े जा रहा हूं।